Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Now today we are going to start our another series of lecture on the topic of hypertension, which is also commonly called blood pressure, and it is highly prevalent disease not in only in our society but globally. So let us start hypertension as it is an imperative topic for the students of pharmacy as well as other clinical students in medicine or other sciences who treat blood pressure. So now first of all, let us talk about the definition of hypertension. This definition is provided by JNC 7 guideline. What is JNC 7? JNC 7 is a guideline. We will discuss it about discuss about it in here. This is a seventh report on the Joint National Committee. Seventh report of the Joint National Committee on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure, or JNC 7. Anyway, hypertension. What is hypertension? Hypertension is a blood pressure elevated enough to perfuse tissues and organs. ब्लड प्रेशर क्या है, हाइपरटेंशन क्या है कि ब्लड प्रेशर इतना हो कि वो तमाम जो टिश्यूज़ और ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड सप्लाई कर सके. एलिवेटेड सिस्टमिक ब्लड प्रेशर इज़ यूजुअली डिफाइंड एज सिस्टोलिक रीडिंग 140 or more than 140 mmHg and diastolic reading which is 90 mmHg or around 90 more than 90 mmHg. So first of all is what is blood pressure? Blood pressure is a blood pressure or the pressure of the blood which perfuse the blood to different tissues and organs. And elevated blood pressure is usually defined as based upon the systolic and diastolic readings. Now what is systolic and what is diastolic reading? If you talk about the systolic blood pressure क्या है, 140 mmHg या इससे ऊपर हो तो ये systolic blood pressure की reading है. Means के if the blood pressure is more than 140 then it is considered as elevated blood pressure. Systolic reading is elevated. इसी तरीके से diastolic की अगर बात करें तो diastolic reading is 90 mmHg or more than 90 mmHg. So overall it is considered as 140 by 90 mmHg. अगर इससे ज़्यादा इतनी रीडिंग आ रही है ब्लड प्रेशर की और if it is more than 140 by 90 mmHg then it is called elevated blood pressure, means blood pressure जो है वो बढ़ा हुआ है. Added pre-hypertension category, that is also an important category of the blood pressure. Pre-hypertension category that include patients with systolic blood pressure reading of 120 to 139 mmHg or diastolic pressure reading of 80 to 89 mmHg. This category is now included in contemporary management strategies. Why? Because कि एक patient जो अभी pre-hypertensive है वो आगे चल के hypertensive हो सकता है. That is why it is important to manage it. इसकी management strategy होनी चाहिए. ये JNC 7 की definition है. JNC 8 में थोड़ी बहुत changes है that we will discuss in separate lecture. यानी comparison, we will do the comparison between JNC 7 and JNC 8 as well as some other guidelines globally applicable in different countries of the world. तो सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन देख ली कि और ये बिल्कुल क्लियर कट डेफिनेशन है कि अगर ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक इतना होगा, इस रेंज में होगा तो ये हाइपरटेंशन है यानी एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है. इस रेंज में होगा तो फिर ये जो है वो प्री हाइपरटेंसिव केस है और इसके लिए भी कुछ ना कुछ मैनेजमेंट हमें करनी पड़ेगी. नाउ इट हैज़ बीन 7 years सिंस द मोस्ट रिसेंट national guidelines referred to as JNC 7. However, currently the National Heart, Lung and Blood Institute is leading to the development of an integrated set of cardiovascular risk reduction guidelines for adults using the state of the art methodology. तो नेशनल NHLB आई जो कि नेशनल हार्ट लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट है, ये भी गाइडलाइन डेवलपिंग अथॉरिटी है. ये जो है एक और भी जो है वो गाइडलाइन डेवलपमेंट के लिए जो है इन्होंने काम किया हुआ है जो कि ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है. द इंटीग्रेटेड अप्रोच विल इंक्लूड अपडेटेड कोलेस्ट्रॉल गाइडलाइन विच इज़ ATP4 गाइडलाइंस, हाइपरटेंशन गाइडलाइन JNC 8 एंड ओबेसिटी अपडेट which is called obesity 2,
integrated cardiovascular risk reduction guideline and the current timeline call for GNC 8 for public review and recommending and commenced during the fall 2011 and released the final update till September 2012. इसके अलावा इसको उन्होंने जो है NHL जो BI है, नेशनल हार्ट लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट, इन्होंने इंटीग्रेट करने की कोशिश की है कि कोलेस्ट्रॉल गाइडलाइन अपडेट वो JNC 8, OBCT 2, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क रिडक्शन गाइडलाइन, इनको इंटीग्रेट करके एक गाइडलाइन डेवलप की जाए जो कि ज़्यादा बेहतर तौर पर जो है वो तमाम गाइडलाइंस को कंबाइन करके एक न्यू रिकमेंडेशन जो है वो दी जाए। तो जिसकी बेस पर जो है वो तमाम जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनको सामने रखते हुए जो पेशेंट की जो डाइवर्सिटी होती है अबाउट द डिजीज़ मैनेजमेंट, उसको अंडर कंसिडरेशन रखते हुए ट्रीटमेंट के लिए जो है वो जो गाइडलाइन दी जानी चाहिए जो सबसे ज़्यादा यानी सेफ एंड इफेक्टिव हो वो ऑफ़र की जाए। द मेजॉरिटी ऑफ दिस चैप्टर विल फोकस ऑन द करंट गाइडलाइन दैट इज़ GNC 7। तो हम जो है ज़्यादा GNC 7 पे काम करेंगे। However, the recently released 2011 consensus document on the treatment of hypertension in elderly has been added and can be viewed in the entirely with the following citations। ये citations हैं, ये author's name है, ये ACCF guide AHA guideline, American College of Cardiology Task Force, American Heart Association AHA 2011 experts consensus document on hypertension in the elderly, और ये है ए रिपोर्ट ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी फाउंडेशन टास्क फोर्स एंड क्लिनिकल एक्सपर्ट कंसेंसस डॉक्यूमेंट्स। इट इज़ पब्लिश्ड इन द जर्नल कॉल्ड सर्कुलेशन इन 2011, वॉल्यूम 123, इशू नंबर 21, पेज नंबर 2434 to 2506। नाउ first of all, let us see the classification of hypertension shown in table 33.1 and the table reflects the recommendation of GNC 7। तो अब हम सबसे पहले definition तो हमने cover कर ली। What is the definition of hypertension? Now let us see the classification of blood pressure. Classification of blood pressure is also an important factor to understand और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी टू अंडरस्टैंड। वाई? बिकॉज इसी की बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि हमें पेशेंट को मैनेज किस तरह से करना है। नाउ कम टू द टेबल 33.1। नाउ दिस इज टेबल 33.1 क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन फॉर एडल्ट्स 18 years or above 18 years of age। Here is the classification: normal blood pressure, pre-hypertension, stage 1 hypertension and stage 2 hypertension। तो इस तरह से क्लासिफाई किया गया है। ये 4 कैटेगरीज हमारे पास मौजूद हैं: स्टेज 1, स्टेज 2, नॉर्मल। व्हाट इज़ नॉर्मल ब्लड प्रेशर? इफ़ द सिस्टोलिक रीडिंग इज़ लेस देन 120 mmHg एंड डायस्टोलिक रीडिंग इज़ लेस देन 80 mmHg, then this is called normal blood pressure। What is the management requirement? Management requirement just lifestyle modification should be encouraged, ताकि पेशेंट नॉर्मल है तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर ही उसके उस रेंज में रहे। अब लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में यही आ जाती है कि जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी हो, डाइट कंट्रोल में हो, ऐसी डाइट ना ले जो के ब्लड प्रेशर को रेज करती है, सॉल्ट इनटेक जो है वो स्पेसिफाइड हो, एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक ना हो, ये तमाम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इसमें एनकरेज करनी चाहिए। इफ़ द पेशेंट इज़ डायग्नोज, द इंडिविजुअल इज़ डायग्नोज इन द प्री हाइपरटेंशन रेंज, जैसा कि हमने डिफाइन किया हुआ है कि अगर सिस्टोलिक रीडिंग 120 से 139 mmHg आ रही है और 80 से 89 mmHg आ रही है, देन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ यस रिकमेंडेड। इसमें तो बस यानी इसमें ज़्यादा एम्फेसाइज है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में, ताकि पेशेंट जो है वो प्री हाइपरटेंसिव से हाइपरटेंसिव की रेंज में ना चला जाए। About the drug recommendation, in this situation no antihypertensive drug is indicated unless presence of compelling indication requiring the drug therapy। अब ये compelling indication क्या है, उसको मैं अभी बात करता हूँ। Drugs for compelling indication, yes, it is recommended with compelling indication। compelling indication ये है कि हम यहाँ पे अगर बात करें कि selected drug therapies have been identified in clinical trial for positive clinical outcome in specific clinical situations representing the compelling indication for their use। अब ये compelling indications क्या है? Like for example patients of heart failure,
अगर पेशेंट हार्ट फेलियर है तो उसके लिए जो है वो भले वो प्री हाइपरटेंसिव हो, उसको डायरेटिक्स या बीटा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर, आर एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, इनमें से कोई भी एक ड्रग दी जा सकती है। या फिर पोस्ट मायोकार्डियल इन्फाक्शन का पेशेंट हो, उसको बीटा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट ड्रग दी जा सकती है। एक और कंपेलिंग इंडिकेशन ये है कि अगर पेशेंट प्री हाइपरटेंसिव है बट हाई रिस्क ऑफ कोरोनरी डिजीज रिस्क, देन डायरेटिक, बीटा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर सीसीबी दी जा सकती हैं। अगर साथ में डायबिटीज़ है तो फिर डायरेटिक्स दी जा सकती है, बीटा ब्लॉकर दी जा सकती है, एस इनहिबिटर दी जा सकती है, आर्ब्स दी जा सकती हैं जो कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, एनसीसीबी यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दी जा सकती हैं। इफ़ द पेशेंट इज़ हैविंग क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बट द पेशेंट इज़ प्री हाइपरटेंसिव तो एस इनहिबिटर या आर्ब दी जा सकती हैं। इसके अलावा रिकरेंट स्ट्रोक प्रिवेंशन के लिए डायरेटिक्स एंड एस इनहिबिटर्स दी जा सकती हैं। तो ये रिकमेंडेशन है, कंपेलिंग इंडिकेशन है ऑन दोज पेशेंट्स इवन इफ दे आर प्री हाइपरटेंसिव। अगर पेशेंट को इसमें से कोई भी इशू नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल पेशेंट इज़ नॉट हैविंग हार्ट फेलियर, पेशेंट इज़ नॉट हैविंग हिस्ट्री ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन एंड हाई कोरोनरी डिजीज़ रिस्क, ये भी नहीं है, डायबिटीज़ भी नहीं है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ भी नहीं है और कोई स्ट्रोक की हिस्ट्री भी नहीं है, तो फिर ऐसे पेशेंट में ये कोई भी ड्रग रिकमेंड नहीं है, बल्कि सिर्फ जो है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो ज़रूरी है ताकि ये ब्लड प्रेशर जो है वो इससे मज़ीद आगे बढ़ के स्टेज 1 या स्टेज 2 में ना चला जाए। नाउ इफ़ द पेशेंट इज़ डायग्नोस्ड विथ स्टेज 1 हाइपरटेंशन, स्टेज 1 हाइपरटेंशन क्या होगा? द सिस्टोलिक रेंज इज़ 140 to 159 mmHg और डायस्टोलिक रेंज 90 to 99 mmHg। तो फिर हम इस पेशेंट को कहेंगे इन दोनों में से कोई भी एक है, क्योंकि वर्ड और लिखा हुआ है यहाँ पर, तो वो स्टेज 1 हाइपरटेंशन कहलाएगा। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन यस, एंड ड्रग ट्रीटमेंट यस, थायराइड डायरेटिक्स फॉर मोस्ट एंड मे ऑल्सो बी कंसिडर्ड एस इनहिबिटर, आर, बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और कॉम्बिनेशन। और अगर साथ में कंपेलिंग इंडिकेशन है, मीन्स के यहाँ पे जो हमने ये डिजीज़ देखी हैं इनमें से भी किसी की हिस्ट्री है, तो फिर ड्रग्स फॉर कंपेलिंग इंडिकेशन, लाइक फॉर एग्जांपल जो यहाँ पर रिकमेंडेड है ड्रग्स पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर आप ये हार्ट फेलियर का केसेस देखें, हार्ट फेलियर के केसेस में डायरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर, आर्ब और एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट दी हुई है, यहाँ पर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं है, तो इसलिए जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं दे सकते। इसी तरह से क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की अगर हम बात करें, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट को सिर्फ एस इनहिबिटर दे सकते हैं और आर्ब दे सकते हैं, ना बीटा ब्लॉकर रिकमेंडेड है, ना जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर रिकमेंडेड है और ना ही कोई और क्लास की ड्रग रिकमेंडेड है। तो ये कंपेलिंग इंडिकेशन अगर साथ हो स्टेज 1 के साथ तो फिर इनमें से ड्रग चूज़ करनी है, क्योंकि यही इस कंडीशन में सेफ हैं। स्टेज 2, अगर इफ़ द ब्लड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ एक्सीडिंग more than 160 or more than 160 mmHg or diastolic blood pressure is exceeding or having 100 mmHg, then lifestyle modification yes। और जो ड्रग की रिकमेंडेशन है वो है 2 ड्रग रिकमेंडेशन, 2 ड्रग कॉम्बिनेशन फॉर मोस्टली थायराइड डायरेटिक्स के साथ एस, आर्ब या बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। थायराइड तो देनी है, लेकिन इसके साथ आपने एक और ड्रग भी जो है वो ऐड करनी है, जो कि या तो एस होगी या आर्ब होगी या बीटा ब्लॉकर होगी। और अगर कंपेलिंग इंडिकेशन है, यानी ये जो हार्ट फेलियर, हिस्ट्री ऑफ एमआई, डायबिटीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, तो फिर इंडिकेशन जो होगी वो उसी हिसाब से होगी जो कि यहाँ पर हमें बताई गई हैं कि इन्हीं ड्रग में से हमें चॉइस करके 2 ड्रग देनी पड़ेंगी जो कि रिकमेंडेड हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से। तो ये टेबल 33.1 हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ वी शुड बैक टू द text. Now after the classification, after understanding the classification, we should move further. The relationship between the elevated blood pressure and cardiovascular disease was addressed in GNC 7, which formalizes the fact that the higher the blood pressure, the greater the chance of myocardial infarction, heart failure, stroke as well as kidney disease. तो GNC 7 ने इसको भी एड्रेस किया है कि ब्लड प्रेशर जितना ज़्यादा होगा तो रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी उतना ही ज़्यादा है, और वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इफ़ द ब्लड प्रेशर इज़ नॉट इन कंट्रोल। लाइक फॉर एग्जांपल अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन में लीड टू मायोकार्डियल इन्फाक्शन, हार्ट फेलियर,
स्ट्रोक और द किडनी डिजीज, जैसा कि टेबल 33.32 में प्रोवाइड किया गया है। टेबल 33.2 प्रोवाइड cardiovascular risk factor or lifestyle factors that affect the prognosis of the treatment of hypertension and the various types of target organ damage associated with hypertension। तो टेबल 33.2 हमें प्रोवाइड कर रहा है कि एक तो रिस्क फैक्टर, लाइफस्टाइल फैक्टर और प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन और वेरियस टाइप ऑफ टारगेट ऑर्गन डैमेज एसोसिएटेड विथ हाइपरटेंशन। नाउ वी शुड मूव टू टेबल 33.2। Here is a table 33.2 cardiovascular and lifestyle risk factors for consideration in the management of hypertension. If the patient is hypertensive, then the risk of cardiovascular disease is high, जो भी हमने अभी बात की है, myocardial infarction, cerebral stroke, heart failure. Cigarette smoking is also a risk factor, means कि hypertension भी और वो smoker भी है तो risk और बढ़ जाएगा। Obesity, when the BMI is 30 or more, then it is also a risk factor. Physical inactivity means sedentary lifestyle, ये भी है। Dyslipidemia means के LDL कोलेस्ट्रॉल हाई होना, ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई होना, तो भी रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हाई है। डायबिटीज़ मेलाइटस अगर साथ में है तो अगेन एज ए कंपोनेंट ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यानी हाइपरटेंशन प्लस डायबिटीज़ दोनों है तो रिस्क इज़ ऑल्सो हाई ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। माइक्रोएल्बुमिनूरिया ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा किडनी डिजीज़ का, तो किडनी डिजीज़ है तो रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और हाई है। उसको हम माइक्रोएल्बुमिनूरिया कैसे एस्टिमेट करेंगे? व्हेन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज़ लेस देन 60 ml पर मिनट। इसके अलावा एज इज़ ऑल्सो ए रिस्क फैक्टर इन मैन एंड वुमेन। एज मैन में मोर देन 55 ईयर्स, वुमेन में मोर देन 65 ईयर्स। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्री मैच्योर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, मैन लेस देन 55 ईयर्स, वुमेन लेस देन 65 ईयर्स। मीन्स के फैमिली हिस्ट्री है, पेरेंट्स में प्री मैच्योर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, तो फिर ये रिस्क अबव 55 और अबव 65 मैन एंड वुमेन में नहीं होगा, बल्कि उससे कम पर ही हो सकता है। तो ये जो है वो रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी अगर ब्लड प्रेशर के साथ ये भी चीज़ें ऐड हो जाएं तो फिर जो है वो रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। नाउ वी विल गो बैक टू द टेक्स्ट। As far as concerned with the incidences of the hypertension is the most common cardiovascular disorder. Agreed, 100% agreed. Why? Because it is hypertension is a global issue. Approximately 43 million Americans have blood pressure measuring more than 149 by 90 mmHg. Yeah, because it is American book, that is why we have data of America. The number translates to almost 25% of the adult population, means कि ये तकरीबन 25% of adult population is hypertensive in United States. The incidence increases with the age. Okay, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इंसिडेंसेस बढ़ते जाते हैं। दैट इज 60 to 71% ऑफ द पीपल आर अबव 60 ईयर्स ऑफ एज हैव हाइपरटेंशन। तो वो इंडिविजुअल जो कि अबव 60 ईयर्स हैं उनमें ज़्यादा जो है वो इंसिडेंसेस हैं हाइपरटेंशन के, अकॉर्डिंग टू डेटा ऑब्टेन फ्रॉम थर्ड नेशनल हेल्थ न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन सर्वे एनहेंस 3। इससे जो है ये डेटा हमें रिसीव हुआ है। नाउ देर इज़ अनदर क्लासिफिकेशन, वो तो क्लासिफिकेशन थी ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन एक और जो ओल्ड क्लासिफिकेशन है दैट इज़ प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन एंड द सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ये एक और क्लासिफिकेशन है हाइपरटेंशन की, और यू कैन से इट इज़ ए फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हमने अभी पढ़ी है, जो टेबल 33.1 में, जिसमें हमने इसको स्टेज प्री नॉर्मल, प्री हाइपरटेंशन और स्टेज 1 और स्टेज 2 में क्लासीफाई किया, वो है क्लिनिकल फार्मेसी के पर्सपेक्टिव से, और ये जो है वो फार्माकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से है। सो प्राइमरी हाइपरटेंशन इन विच नो स्पेसिफिक कॉज कैन बी आइडेंटिफाइड कंस्टिट्यूट मोर देन 90% केसेज ऑफ हाइपरटेंशन। द एवरेज ऑनसेट इज़ अबाउट 35 ईयर्स। ये जो है प्राइमरी हाइपरटेंशन, इसकी कोई आइडेंटिफाइड कॉज नहीं है, मीन्स कि देर इज़ नो स्पेसिफिक कॉज आइडेंटिफाइड। हमें नहीं मालूम कि ये हाइपरटेंशन क्यों होती है, एंड अनफॉर्चुनेटली most of the cases or the majority of cases of hypertension belongs to primary or essential hypertension. Secondary hypertension resulting from the identifiable cause, इसकी कोई ना कोई identifiable cause होती है और the root cause होती है। अगर हम उस root cause को rectify कर लें, correct कर लें, तो फिर ये blood pressure जो है वो control में आ जाता है। For example, secondary hypertension, the renal disease or adrenal hyperfunction,
किडनी डिजीज़, एलिमिनेशन सही तरह से नहीं है, वाटर जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है, तो जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स पे प्रेशर बढ़ रहा है। एड्रीनल हाइपरटेंशन फंक्शन मींस कि एड्रीनल ग्लैंड एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं जो कि वैसोकंस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये डिजीज़ हो रही है, जिसको हम फ्यूक्रोमोसाइटोमा भी कहते हैं। अकाउंट्स फॉर रिमेनिंग 2 to 5% ऑफ सिस्टमिक हाइपरटेंशन। बट ये हाइपरटेंशन की जो रीज़न है वो सिर्फ 2 to 5% केसेस में होता है। एंड दिस टाइप यूजली डेवलप बिटवीन द एज ऑफ 30 to 50 ईयर्स। तो ये जो है वो 30 to 50 ईयर्स की एज के दरमियान में होता है। तो ये फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाती है। नाउ फिजियोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर जो है वो है हम हाउ वी कैन डिफाइन ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट इनटू टोटल पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस। स्ट्रोक वॉल्यूम जो कि कार्डिक आउटपुट है, हार्ट रेट कितना चल रहा है, मल्टीप्लाई बाय जो वैस्कुलर ब्लड वेसल से रेजिस्टेंस मिल रही है, वो जो है ब्लड वेसल में जो रेजिस्टेंस है टू फ्लो ऑफ द ब्लड, वो जो है वो ब्लड प्रेशर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो ऑल्टरिंग एनी ऑफ द फैक्टर ऑन द राइट साइड ऑफ द ब्लड प्रेशर इक्वेशन रिजल्ट इन चेंज इन ब्लड प्रेशर एज शोन इन फिगर 33.1। अब यानी स्ट्रोक वॉल्यूम या हार्ट रेट में कोई फ़र्क आए या टोटल पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाए, तो जो है या लाइक स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाए तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ये स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट नॉर्मल है, बट टोटल पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ गई तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये है वो राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। फिगर 33.1 को अगर हम देखें, ये है फिगर 33.1 विच इज़ मैंशनिंग हियर ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ब्लड प्रेशर as they relate to cardiac output and total peripheral resistance. Angiotensin 2, a potent vasopressor or constrictor, not only increases the total peripheral resistance but also by stimulating aldosterone release lead to increase in plasma volume, venous return, stroke volume and ultimately an increase in cardiac output. अब ये है सिंपैथेटिक एड्रिनर्जिक सिस्टम। ब्लड प्रेशर जो हमने अभी बात की, कार्डियक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। कार्डियक आउटपुट क्या है? हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, जो हमने अभी बात की, यानी हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब क्या होगा कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगी? टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ने के मुख्तलिफ रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल किडनी है, रेनिन रिलीज़ हुआ, रेनिन से एंजियोटेंसिन 1-2 बना, और फिर उसके बाद एंजियोटेंसिन 2 जो है वो वैसोकंस्ट्रिक्टर है, तो ये पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ाएगा। इसके अलावा वेनस रिटर्न भी बढ़ेगा, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ेगा, एल्डोस्टेरॉन खुद भी जो है वो क्योंकि सोडियम और वाटर रिटेंशन करता है तो उस वजह से प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ता है, तो वेनस रिटर्न बढ़ता है, उससे स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा। स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। इधर से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है तो ब्लड प्रेशर बिल आखिर इंक्रीज हो ही जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद आइए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बैरो रिसेप्टर्स और जो है वो प्रेशर रिसेप्टर्स हैं इन द कैरोटिड एंड एओर्टिक आर्क रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन द ब्लड प्रेशर एंड इन्फ्लुएंस आर्टेरियल डायलेशन एंड आर्टेरियोलर कंस्ट्रक्शन। कि जो जैसे ही जो हार्ट से ब्लड जो है वो रिलीज़ होता है, यानी ये कार्डियक आउटपुट जो है वो आता है, यानी स्ट्रोक वॉल्यूम रिलीज़ होता है, तो जब ब्लड जो है वो कैरोटिड आर्टरी और एओर्टा में आएगा तो वहाँ पे बैरो रिसेप्टर्स होंगे जो कि मेजर करेंगे प्रेशर कितना है। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो आर्टरीज़ को डायलेट करेंगे ताकि वो इस ब्लड को जो है वो एकोमोडेट कर सके, और अगर प्रेशर कम है तो वो आर्टरीज़ को कंस्ट्रिक्ट करेंगे ताकि ब्लड जो है वो तमाम जो फार एरिया है बॉडी में, पेरिफेरल साइड्स हैं, वहाँ पर वो ब्लड पहुँच सके। व्हेन स्टिमुलेटेड टू कंस्ट्रिक्ट द कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स स्ट्रेंथन इंक्रीजेज द हार्ट रेट एंड ऑगमेंटिंग पेरिफेरल रेजिस्टेंस दज इंक्रीजिंग द कार्डियक आउटपुट। जब ये वर्क करेंगे तो कंस्ट्रिक्शन होगी, कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स इंक्रीज होगी, हार्ट रेट बढ़ेगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी और कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। इफ़ प्रेशर रिमेन्स एलिवेटेड, अगर बढ़ता मुसलसल बढ़ा रहेगा, द बैरो रिसेप्टर रीसेट एट द हायर लेवल एंड सस्टेन्स द हाइपरटेंशन, और ब्लड प्रेशर को सस्टेन करेंगे। लिटिल एविडेंस टू डेट सजेस्ट द एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, टू मेजर न्यूरोट्रांसमीटर of the sympathetic nervous system, have a clear role in the cause of hypertension। यानी एज ए न्यूरोट्रांसमीटर एपिनेफ्रिन
का जो नॉरएपिनेफ्रिन का जो रोल है वो ज़्यादा वाज़ेह नहीं है, इसके एविडेंसेस जो है वो बहुत कम है. हाउएवर many of the drugs used to treat hypertension lower the blood pressure by blocking the sympathetic nervous system, जिसमें आपकी बीटा ब्लॉकर ड्रग्स हैं. तो वो काम तो करती हैं लेकिन इनके बारे में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन के हवाले से अवेलेबल नहीं है. नाउ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन रीनल आर्टरी हाइपरटेंशन, सिस्टमेटिक स्टिमुलेशन रीनल आर्टरी हाइपरटेंशन हुई and decrease sodium delivery to the distal tubule, stimulate the release of renin by the kidney. कहाँ से? juxta glomerular apparatus of the kidney से, वहाँ से ये रिलीज होता है. नतीजा क्या निकलेगा रेनिन रिलीज होने का? रेनिन एंड एंजाइम रिएक्ट विद ए सर्कुलर सबस्ट्रेट कॉल्ड एंजियोटेंसिनोजिन. ये सर्कुलेटिंग सबस्ट्रेट है एंजियोटेंसिनोजिन, इससे रिएक्ट करेगा टू प्रोड्यूस ए एंजियोटेंसिन 1, एक वीक वेजोकंस्ट्रिक्टर, और ये प्रोड्यूस करेगा एक वीक वेजोकंस्ट्रिक्टर को जो कि एंजियोटेंसिन 1 कहलाता है. विद इन द पल्मोनरी यानी लंग में पल्मोनरी एंडोथेलियम अनदर एंजाइम रेफर टू एज एस एंजाइम और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम विच इज एबल टू हाइड्रोलाइज द डेकापेप्टाइड एंजियोटेंसिन 1 टू फॉर्म ए ऑक्टापेप्टाइड एंजियोटेंसिन 2, ए पोटेंट नेचुरल वेजोकंस्ट्रिक्टर. तो ये जो एस एंजाइम है जो कि लंग में मौजूद होगा, ये हाइड्रोलाइज करेगा डेकापेप्टाइड एंजियोटेंसिन 1 को बना देगा ऑक्टापेप्टाइड एंजियोटेंसिन 2 में, जो कि मोर पोटेंट नेचुरल वेजोकंस्ट्रिक्टर है. अब जब ये वेजोकंस्ट्रिक्टर है तो लाजिम बात है पेरिफेरल रेजिस्टेंस और बढ़ेगी. एंजियोटेंसिन 2 हैज सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन इन रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम. अब ये एंजियोटेंसिन 2 जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन करेगा. सबसे पहले ये क्या करेगा? जो पहली चीज़ आ जाती है यहाँ पे, इट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड. कौन से रीजन से? जोना ग्लोमेरुलोसा, विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, फ्लूइड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर. एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन किडनी से ये जो ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ से बढ़ जाएगी. सोडियम इज़ हाइड्रेटेड तो वो फ्लूइड को भी, वाटर को भी जो है वो रीअब्जॉर्ब करेगा और उसके नतीजे में फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा. फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा. इसके अलावा इट कंस्ट्रिक्ट द रेजिस्टेंस वेसल्स विच इंक्रीजेज द पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस, क्योंकि ये खुद भी वेजो कंस्ट्रिक्टर है तो तमाम ब्लड वेसल्स में वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएगा और आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज करेगा. इसके अलावा इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ वेजोप्रेसिन और एंटी डायरेटिक हार्मोन फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. इसकी ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जहाँ से एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज़ होता है ये उसको भी रिलीज़ कराएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? एंटी डायरेटिक इफेक्ट आएगा, यानी वाटर रिटेन होगा. वाटर रिटेन होगा तो प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ेगा, फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो ब्लड प्रेशर फर्दर इंक्रीज करेगा. इसके अलावा इट स्टिमुलेट कार्डिक हाइपरट्रॉफी एंड वैस्कुलर हाइपरट्रॉफी. कार्डिक हाइपरट्रॉफी भी करेगा, जिसके मतलब ये होगा कि अब पेशेंट जो होगा जब ये लॉन्ग टर्म रहेगा तो फिर नतीजा ये निकलेगा कि पेशेंट हार्ट फेलियर में जाना शुरू कर देगा. इसके अलावा इट फैसिलिटेट्स द नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज फ्रॉम द सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग, ये तो ये नॉरएपिनेफ्रिन की भी रिलीज करेगा. इनहिबिट नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक फ्रॉम द नर्व एंडिंग विच इनहेंसेस द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन. जब नॉरएपिनेफ्रिन नर्व एंडिंग से रिलीज होगा और उसका अपटेक इनहिबिट होगा तो उसका नतीजा ये होगा कि फर्दर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि नॉरएपिनेफ्रिन भी वेजोकंस्ट्रिक्शन करेगा और हार्ट रेट भी बढ़ाएगा. तो इस तरह से जो है ये एंजियोटेंसिन 2 मल्टीपल जो है वो मेथड से ब्लड प्रेशर को रेज करने का रीज़न बनेगा. एक थ्योरी है विच इज़ कॉल्ड मोजाइक थ्योरी. मोजाइक थ्योरी सेंटर्स अराउंड द फैक्ट दैट द मल्टीपल फैक्टर रादर देन वन फैक्टर अलोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेनिंग हाइपरटेंशन. तो मोजाइक थ्योरी ये कहती है कि ये जो हमने अभी जितने भी फैक्टर पढ़े हैं, चाहे वो एंजियोटेंसिन 2 हो या ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, बैरो रिसेप्टर और नॉरएपिनेफ्रिन इनका रोल है, वो ये कह रही है कि जो है ना ये कोई एक फैक्टर नहीं है ब्लड प्रेशर कॉज करने का, बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि ब्लड प्रेशर कॉज करते हैं. द इंटरेक्शन अमंग द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एंड पोटेंशियल डिफेक्ट इन सोडियम ट्रांसपोर्ट विद इन एंड आउटसाइड द सेल में ऑल प्ले ए रोल इन लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन. यानी ये सब मिल के जो है दरअसल हाइपरटेंशन कॉज करते हैं. एडिशनल फैक्टर्स टू द डेवलपमेंट इंक्लूड जेनेटिक्स, इसके अलावा जेनेटिक्स, एंडोथेलियल डिसफंक्शन
यानी ब्लड वेसल्स की जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं उसमें डिसफंक्शन, जहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड और जो है वो एंड अदर जो ड्राइविंग फैक्टर जो साइटोकाइंस हैं वो, इसके अलावा न्यूरोवेस्कुलर एनोमलीज एंड अदर वेजोएक्टिव सब्सटेंस that are involved in maintenance of blood pressure have been identified. These include, जैसे मैंने अभी बताया, नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि वेजोडाइलेटर है, एंडोथैलिन जो कि वेजोकंस्ट्रिक्टर है, ब्रेडिकाइनिन जो कि वेजोडाइलेटर है इनएक्टिवेटेड बाय एस, एंड एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ये सब मिल के जो है दरअसल ब्लड प्रेशर को कॉज करते हैं, कोई एक फैक्टर इसमें सिर्फ रीज़न नहीं होता। तो इस तरह से जो है ये ब्लड प्रेशर कॉज होता है। नाउ फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन की बात करें अगर हम, तो इंक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीजेज द वेनस सिस्टम डिस्टेंशन एंड वेनस रिटर्न। लाजिम बात है कि अगर फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वेन्स में ब्लड ज़्यादा हो जाएगा और वो वेनस जो वेन्स है उसको डिस्टेंड करेगा। इसके नतीजे में क्या करेगा कि वेन्स वो ब्लड जो होगी वो ज़्यादा रिटर्न करेंगी टूवर्ड्स हार्ट, तो हम उसको कहते हैं वेनस रिटर्न बढ़ जाएगा, यानी प्री लोड बढ़ जाएगा। जब प्री लोड बढ़ेगा तो उसके नतीजे में आफ्टर लोड भी बढ़ जाएगा और यानी कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा, अफेक्टिंग कार्डियक आउटपुट एंड टिश्यू परफ्यूजन। क्योंकि ये जो है वो हार्ट का जो फंक्शन वो इस तरह से है कि अगर वेनस रिटर्न ज़्यादा हो जाए तो हार्ट ज़्यादा फिल हो जाता है ब्लड से, तो फिर वो उसी ज़्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से ब्लड का जो कार्डियक आउटपुट है वो भी इंक्रीज हो जाता है। दीज चेंजेस ऑल्टर वेस्कुलर रेजिस्टेंस, और इससे वेस्कुलर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है एंड इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर। तो इस तरह से ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये मेजर रीजंस हैं ब्लड प्रेशर के, और इस तरह से ये पूरा मैकेनिज्म है जो कि ब्लड प्रेशर कॉज करने का रीज़न बनता है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर से वी विल स्टार्ट द कॉम्प्लिकेशंस।